Hello everyone, Namaskar. In today's video, we are going to be talking about what do you do in the last 67 days to prelims. I'm sure a lot of you got distracted with the result coming out and all that, drama that was happening here, there, everywhere. Time for that is gone. Karliya entertainment. Abhi, if you're serious about 2026 attempt, you have 67 days and prelims is not easy. Prelims is the toughest stage of the exam. For the simple reason that prelims is the place where most people get eliminated. So naturally, in today's video, we're going to be talking about what are the areas that we want to focus most of our energy on in these last 67 days in order to get the maximum benefit out of them. So that, wherever I am standing right now, if I've done some work, I can, make actual progress in the last 2 months. Because these 2 months are the game changer. If you can focus here, well, everybody else is distracted, you will get through. But before we go any further, there are some questions. This is a very common question that then comes up ki, okay, I will put in the effort, but can I clear it in 2 months? If suddenly you have woken up from under a rock कि भाई सो रहे थे अभी तक या आप ख्याली पुलाव बना रहे थे and then you have suddenly woken up and said कि नहीं आज मैं तैयारी शुरू करूँ, you are probably not going to clear. But again, if you are somebody who has been working let's say since January, बीच में थोड़ा distract हो गए, इधर उधर कुछ कुछ चीजें हुई, but some work has been done, तो these last 2 months can be your game changer. Game changer for the simple reason that focused study in these 2 months is what makes the difference because there is so much to do. ये 2 महीनों में सब चीज रिवाइज होगी ही एंड उनमें अब क्या क्या चीजों पे ज्यादा रिवीजन करना है, कम करना है, करंट अफेयर्स में क्या फोकस ना फोकस, विल टॉक अबाउट दैट. बट देयर इज अ सेकंड क्वेश्चन दैट आल्सो कम्स अप. A lot of people have been asking this question कि भाई given the new rules that have come up in 2026 where you are only given one more attempt to improve your rank, should I skip this attempt? And I am, mind blasted by this question ki, okay, people are saying that if I will get a rank in, let's say, 300, 400 or 700, 800, I will not get a good service, but then I will only get one more attempt to clear. Are you hearing yourself? मतलब think about this. आपके हाथ में कुछ नहीं है. You have nothing in your hand and then you are worried about कि अच्छा रैंक आ जाएगी, but अच्छी नहीं आएगी क्योंकि मेरा मेंस की तैयारी पूरी नहीं है. तो I will give you another way to think about it, which is कि if I have a service and then I'm thinking of giving another attempt, it is a very good problem to have, right? And over here, Aniket Ranjan, who was our student in mains and Write Unlimited and multiple other courses, so he was somebody who secured a rank of 700 in 2024 and then 2025 में secured a rank of 48. तो देखो करने को 2 अटेम्प्ट में बहुत कुछ हो सकता है. And don't think about this कि okay, just because new rules are here, I'm going to skip XYZ. This is just, faulty logic. However, I like to ask a counter question क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि नहीं, I am not 100% prepared, मेंस नहीं हुआ है, कैसे करेंगे, and some of them are genuinely scared also कि भाई what do we do? It's anxious, मतलब anxiety inducing at this moment. I like to ask this counter question, which is कि भाई do you want to give all 6 attempts? Because generally the answer to this second question over here is a big no. We do not want to give all 6 attempts. Is this question not already answered? अगर आपके attempt बचे हैं, if your first or second attempt पे आप हो, I am not planning to give all 6 attempts. Do not think about skipping an attempt. Go ahead with it because any which way, mains की तैयारी you will start from June onwards only. अभी से तो नहीं कर रहे हो. Now, coming to the core of the discussion today, कि भाई what are the objectives that you want to focus on while you are in these last 2 months? These are your objectives. First and most important is you have to keep calm and study on. Study hard and don't get distracted for the simple reason that in these last 2 months आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, आपको बहुत सारा गाइडेंस मिलेगा कि अच्छा ये कर लो, वन शॉट में ज्योग्राफी हो जाएगा, वन शॉट में इकोनॉमी हो जाएगा, वन शॉट में एवरीथिंग हो जाएगा. भैया अगर वन शॉट में ही होता क्या ही प्रॉब्लम थी, एवरीबडी वुड हैव क्लियर्ड. There will be a lot of distractions and you have to stay focused. And not just stay focused, you have to keep calm. Calm क्यों? Because a lot of these videos which will come up, your friends will be doing them, and again, I'm not saying that these are bad videos. I am simply saying you should be clear on what you want to do. Zabardasti, just because there is a video out doesn't mean that you have to watch that video. You have to focus on okay, where are my weak spots, what are the areas that I am facing a problem in, and that is where you study hard. Now, next, other things that I want to focus on, but उससे पहले एक और चीज आप ध्यान रखो यहाँ पे
कि कॉन्फिडेंस जो आपका है विच डिराइव्स फ्रॉम दिस, फ्रॉम कीपिंग काम एंड स्टडीइंग हार्ड, this confidence is the one thing that can lead to plus 10 marks in prelims, as simple as that. आप confident नहीं हो, maybe you were supposed to clear the prelims exam, but just because you were not confident, you will make some mistakes, you will lose marks. But just because you are confident, you will take some risks which will turn out well. That is the idea. Be confident. And confidence कैसे आएगा? Confidence will only come when you have done the work. अपने आप ऐसे मतलब एक दिन उठ के कॉन्फिडेंस नहीं आता. When I've put in the effort, when I've put in the hard work, that is when confidence will come. So study hard. First and most important objective for you in the next 2 months. Second, core subjects हैं हमारे कुछ. Core subjects को मैं चाहूंगा कि that you focus on revising at least 3 times. Then there are other subjects which we want to focus on also. ऐसा नहीं है इनको इग्नोर कर रहे हैं, बट इनको मैं कम भी रिव्यू करूंगा, चलेगा मेरे को. डिफरेंस क्यों है? Core subjects are subjects where there is a high chance of repetition. There are subjects, we'll talk about them, but in subjects में सीधा सीधा क्वेश्चन बार बार उठ के आ जाता है. ज्योग्राफी की भी बात करते हैं, आई टी ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में लाइक ऑलमोस्ट फॉर द लास्ट 10 years एवरी ईयर एटमॉस्फेयर से एक क्वेश्चन आता है, एवरी ईयर ओशियनोग्राफी से एक क्वेश्चन आता है. बेसिक सवाल वही एनसीईआरटी से बार बार जब आ रहे हैं, तो इज दैट नॉट समथिंग दैट आई शुड बी वेरी फोकस्ड ऑन? क्योंकि वही एनसीईआरटी मुझे करनी है. एंड दिस, इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स हियर, यू आर आउट ऑफ द रेस. यहां पे हर कोई गलतियां करेगा, बिकॉज दिस इज वेरी करंट अफेयर्स हैवी. देन विल कम टू टेस्ट एंड रिव्यू. सब चीजों के बारे में बात करते हैं. पहले बात करते हैं टेस्ट एंड रिव्यू के बारे में. सबसे पहले इसके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज टेस्ट अभी सही समय है टू स्टार्ट गेटिंग टेस्टिंग डन. नाउ a lot of people ask कि भी सेक्शन टेस्ट देने या फुल टेस्ट देने. राइट नाउ इज अ ग्रेट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट गेटिंग सेक्शन टेस्ट थ्रू. सेक्शन टेस्ट में क्या क्या करना है आपको? सेक्शन टेस्ट में आपने पॉलिटी पढ़ा, पॉलिटी का टेस्ट दो. ज्योग्राफी पढ़ा, ज्योग्राफी का टेस्ट दो. ऑल ऑफ दीज थिंग्स एटलीस्ट एक सेक्शन टेस्ट जरूर दो. क्योंकि बहुत बार क्या होता है दैट इफ आई स्कोर बैड मार्क्स इन अ फुल टेस्ट, आई हैव जस्ट स्टडीड पॉलिटी ज्योग्राफी एंड आई हैव गिवन अ फुल टेस्ट, सो देयरफॉर आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड कि भाई बाकी सब्जेक्ट नहीं आते मुझे. नहीं आते तो नंबर नहीं आएंगे, नंबर नहीं आएंगे तो फिर कॉन्फिडेंस डाउन होगा. ये नहीं करना है. अभी अभी के लिए मुझे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है. बिल्ड क्यों करते रहना है? ताकि मैं पढ़ाई करता रहूं. राइट? कीप काम एंड स्टडी हार्ड रिक्वायर्स दैट यू कीप गेटिंग सम स्मॉल रिवॉर्ड्स अलोंग द वे. स्मॉल रिवॉर्ड्स क्या है? सेक्शन टेस्ट में अगर अच्छे नंबर आते हैं, नहीं आते तो कोई बात नहीं, आई विल लर्न फ्रॉम इट. बट इफ आई कीप वर्किंग हियर, आई विल कीप building that confidence. From April onwards, I want you to start giving full tests. For the simple reason कि by April आपका एक राउंड ऑफ रिवीजन सारे सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ हो जाएगा. एंड देन ऑनवर्ड्स भाई मैं सिर्फ और सिर्फ फुल टेस्ट पे फोकस करूं. क्योंकि अंत में द एग्जाम इज गोइंग टू बी a full test. It is not going to be only this subject or that subject. It is going to be all subjects. And not just that, when you are in April, I also want you to do simulators, meaning GS and CSAT. दोनों के टेस्ट दो एक ही दिन में. This at 9:30, this at 2:30. This will also get you into that practice of okay, no, I have to wake up on time. Because अब ये full test वाली जो चीज है, from April onwards, this is something that's very important, that you have to get with the time of the exam. Abhi maybe you are studying till late night and waking up late and it's fine. But April onwards, एग्जाम के टाइमिंग पे आपको स्विच होना पड़ेगा. बिकॉज अगर आप नहीं होगे तो देन इट विल बी ऑन द एग्जाम डे, यू आर गोइंग इनटू द एग्जाम हॉल एंड यू आर फीलिंग स्लीपी. व्हाई? बिकॉज यू आर जनरली स्लीपिंग टिल 10 AM. बट एग्जाम at 9:30. From April onwards, start giving these full simulator tests. You have 10 weeks to go. 10th week के एंड पे आपका प्रीलिम्स है. तो अगले 9 हफ्तों में एवरी संडे, मतलब 9 हफ्ते छोड़ो, 5 हफ्ते या 6 हफ्ते इसमें से भी अगर आप एवरी संडे ये चीज कर लेते हो ना, I can guarantee you just that कि based on this only your outcomes will improve. Now, the other very very important thing that happens with tests is the review. And review के लिए what we'll do is Neetu ma'am, who has been making some wonderful videos where she covered the 2025 का and 2024 का prelims का PYQs in depth in detail. She'll be doing a video on how to review tests कि भाई कैसे देना है, पेपर को कैसे अप्रोच करना है, राउंड्स में कैसे करते हैं. All of these things we'll be covering in that video, which will be coming up in the next few days. The idea is simple. टेस्ट देना शुरू करो और साथ ही साथ ये रिव्यू वाला जो वीडियो आएगा इसमें डिटेल में हम बताएंगे कि भैया अच्छा कैसे राउंड में देखना है, कैसे गलतियों को पकड़ना है और गलती को पकड़ के सुधारना कैसे है.
ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज सिर्फ टेस्ट देने से कुछ नहीं होता. आई हैव टू यूज दैट आउटपुट, राइट? Which brings us to the core subjects. Now core subjects की बात करें तो these are your static subjects. मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी. ज्योग्राफी के साथ साथ मैप्स, क्योंकि मैप्स बदल नहीं रहे हैं. देयर आर बेसिक थिंग्स दैट आर कवर्ड इन ईच एंड एवरी एटलस. इफ यू कैन डू इट वेल, हो जाएगा. साथ में एक और यहां पे हमारा मजेदार सब्जेक्ट है सी सैट. नाउ आई एम श्योर देर आर सम पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो हु डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद सी सैट, बट अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं देखो सी सैट से प्रॉब्लम है. तो सी सैट के बारे में भी बात करेंगे. बट ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, दीज आर योर कोर सब्जेक्ट्स. इनको 2 से 3 बार रिवाइज करो जरूरी, क्योंकि यहीं पे अगर आप गलती करते हो ना, यू आर आउट ऑफ द गेम. पॉलिटी में इजी सवाल आएंगे, जो इकोनॉमी में, ज्योग्राफी में इजी सवाल आएंगे. मतलब 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं ईच ऑफ दीज सब्जेक्ट्स. 15 15 15. मॉडर्न हिस्ट्री में मे बी 5 to 8 क्वेश्चंस, बट दिस इज ऑलमोस्ट हाफ द पेपर. 50 क्वेश्चंस, एंड इन 50 क्वेश्चंस में ना आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रह सकती है, क्योंकि ये स्टैटिक है. एब्सोल्युटली लक्ष्मीकांत ही करनी है, कुछ और नहीं करना है. लक्ष्मीकांत को 3 बार रिवाइज कर लिया ना, ये 15 क्वेश्चन आउट ऑफ पॉलिटी यू विल बी एबल टू गेट 12 to 13. इकोनॉमी के 15 क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी हैंडबुक कर लो केतन सर की, यू विल बी एबल टू डू 12 to 13. दैट इज द आइडिया ओवर हियर. ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज, दैट्स इट, नथिंग एल्स. एनसीईआरटी एंड एटलस. मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम में भी आप पीछे समरीज पढ़ोगे, रिवाइज करते रहोगे, यू विल बी एबल टू डू दीज थिंग्स. व्हिच brings us to the other important, subject over here, CSAT. CSAT में अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है कि यू हैव टू डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. पिछले 5 साल के, 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरू करो. इफ यू कैन डू दिस, 60% ऑफ योर प्रिपरेशन इज डन. क्योंकि बहुत से लोग बोलेंगे कि क्लास ले लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो. इफ यू रिक्वायर क्लास, गो फॉर क्लास, डोंट, मतलब उसमें कोई दोराई नहीं है. बट प्रैक्टिस इज व्हाट मैटर्स अ लॉट मोर इन सीसैट. क्लास में कर लोगे, सब समझ आ जाएगा. जब टीचर कर रहा है, डजंट मेक अ डिफरेंस जब आप नहीं कर पाओ. आप कैसे कर पाओगे? थ्रू प्रैक्टिस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द बेस्ट मींस टू प्रैक्टिस सीसैट. कोई टेस्ट सीरीज, कुछ क्या, कोई मतलब नहीं है. प्रीवियस ईयर पेपर सीधा उठाओ, वर्क ऑन देम, एंड दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू मेक अ हेल ऑफ अ लॉट ऑफ अ डिफरेंस. सिर्फ इधर से स्टार्ट करोगे ना, तो भी काफी प्रोग्रेस दिखाई देगी आपको खुद से. क्योंकि सीसैट में ना 2 प्रॉब्लम रहती है. एक तो होता है आई डोंट नो द कॉन्सेप्ट. दूसरा होता है कि इवन व्हेन आई नो द कॉन्सेप्ट, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन टाइम. मेरे को आधा घंटा दे दोगे, हाँ मैं कर दूंगा, बट 2 मिनट में, 3 मिनट में वही सवाल करना बिकम्स अ प्रॉब्लम. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट यू टू प्रैक्टिस ओवर हियर. सीसैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से चालू करो, एंड देन वी विल आल्सो बी शेयरिंग द सीसैट का वर्कबुक. तो ये जो सीसैट का वर्कबुक है, this we will also share in the next couple of days. The idea here will be very simple, कि ये वर्कबुक में हम ऑर्गेनाइज करके देंगे आपको चीजें कि भाई नंबर सिस्टम, पहले सारा थ्योरी, सब प्रैक्टिस क्वेश्चंस. देन टाइम एंड डिस्टेंस, पहले सारा थ्योरी, फॉर्मूलाज क्या है, सब चीजें एक साथ आ जाएगी. प्रैक्टिस मेक्स द डिफरेंस इन सीसैट. रेस्ट बाकी सब शोशा है. सिर्फ क्लास अटेंड करने से सीसैट में कुछ नहीं होता है. प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपके लिए फायदा है. नाउ कमिंग टू द अदर सब्जेक्ट्स. अदर सब्जेक्ट्स जो हमारे हैं, दीज आर योर सब्जेक्ट्स विच आर एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स. नाउ डज नॉट मीन दैट दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब एनवायरमेंट से देखें, सो 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे भी आते हैं. साइंस एंड टेक में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं. एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर में आपके मे बी 7 to 8 क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाते हैं. एंड द रेस्ट रिमेनिंग जितना रहता है वो करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं आपका कवर होता है. करंट अफेयर्स में आपका इंटरनेशनल रिलेशन भी हो जाएगा, गवर्नमेंट स्कीम्स भी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बट द प्रॉब्लम विद दीज सब्जेक्ट्स इज कि ओके, मैंने बेसिक्स कर लिया, राइट, शंकर आईएएस कर लिया, मैंने पीएमएफ आईएएस कर लिया, व्हाटएवर यू वांट टू डू फॉर एनवायरनमेंट, एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, आपने मतलब बेसिक सोर्सेज से कर लिया, कि एनसीईआरटीज कर ली या तमिलनाडु बुक्स कर ली, नितिन सिंह, व्हाटएवर इट इज दैट यू डू, रिव्यू करना है. बट इनके बाद भी एक इसका झोल इस एरिया में रहता है. दैट नो मैटर हाउ मच आई स्टडी साइंस एंड टेक, लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन मायोराना 1. नाउ मायोराना 1 जो चिप थी, दैट गॉट इंट्रोड्यूस्ड इन February of 2025. देयर इज नो बुक आउट देयर, देयर इज नो कोर्स आउट देयर जो कवर कर देगा एकदम से, और लास्ट मोमेंट पे कवर कर देगा. कुछ आपका छूट गया तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम. सो करंट अफेयर्स, इसमें अपडेट अपने को करते हुए चलना ही है. एंड करंट अफेयर्स के लिए
Naturally, we have also come up with some ideas कि भाई Nimish sir, who is our modern history faculty and also teaches current affairs, तो Nimish sir has made this massive video. तो ये 8 घंटे की आपकी वीडियो है, complete current affairs for prelims 2026 in one shot. This is part 1. Now part 1 के बाद जो अपना चीज चल रही है यहाँ पे, part 1 के बाद part 2 will also be coming up, where we'll be covering current affairs from Feb, March, April. That will come up towards the end of April. अब April और मई के बीच में जो चीजें आती है ना, those are not relevant for your prelims preparation, क्योंकि तब तक पेपर बन चुका है, सेट हो चुका है, लॉजिस्टिक्स चालू हो चुके हैं. तो लास्ट मंथ का नहीं कवर होगा, बट everything that you require will be covered in current affairs. Which brings us to the other discussion कि अब current affairs में भी तो कुछ order है priority का, कैसे करें ना करें. तो current affairs में दो priorities हैं, P0 and P1. P0 क्या है? This is the basic, ये सबसे पहले करना है. और P0 वापस अपना इन्हीं 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड है कि भाई एनवायरमेंट, कल्चर, साइंस एंड टेक, इन तीनों के करंट अफेयर्स को मैं ज्यादा अच्छे से करूं, क्योंकि भैया इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और इन सब्जेक्ट्स में इतना करंट अफेयर्स आता है कि भाई मतलब हाफ ऑफ दीज सब्जेक्ट्स आर करंट रिलेटेड. Environment में you will get some basic questions, but a lot of the questions will also be related to what has been in current affairs. So therefore, even in current affairs, priority 0 is these subjects. Then second priority आ गई कि भैया अच्छा पॉलिटी का भी कुछ करंट अफेयर्स था, देन इको का भी कुछ करंट अफेयर्स था, देन ज्योग्राफी का भी चीजें चल रही थी. दोज आर देयर. तो आई विल आल्सो गिव यू अ लिस्ट कि भाई करंट अफेयर्स की जब हम बात करते हैं तो दीज आर योर लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो डेफिनेटली आपको करके जाना ही है. अब इसमें से व्हाट विल बी डूइंग, these things I will be covering in the next 2 to 3 weeks. I will cover each of these things. Rivers का already video हमने बना लिया है, तो you can also check that out, in which we have covered the major rivers of India along with their tributaries. ये मैं क्यों इतना स्ट्रेस कर रहा हूं, क्योंकि हर साल रिवर से रिलेटेड सवाल आता है प्रीलिम्स में. एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू, एक बार इंडस से आ जाएगा, एक बार गंगा से आ जाएगा, एक बार ब्रह्मपुत्र से आ जाएगा, एक बार गोदावरी आ जाएगा, कृष्णा आ जाएगा. हर साल जब क्वेश्चन आ रहा है तो दैट इज वेयर आई फोकस, राइट. नाउ अदर देन दैट, रामसर साइट्स, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, तो ये चीजों में जो भी अपडेट है. नाउ नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स में नेचुरली नेशनल पार्क्स आर अ लॉट मोर, बायोस्फीयर रिजर्व्स हमारे लिमिटेड हैं, तो ये तो मुझे सारे के सारे करने ही करने हैं. नेशनल पार्क्स में स्पेशल फोकस ऑन न्यू और इन न्यूज कि भाई अगर कोई नेशनल पार्क इज पर्टिकुलरली इन द न्यूज, सो देयरफॉर उस नेशनल पार्क के आसपास मैं देखूंगा कि अच्छा व्हाट आर दी मेजर fauna species that are found here, what are the major plants that are found here, कौन से स्टेट में है, कौन सी नदी जाती है, those sorts of things. रामसर साइट्स, these are I think about 98 sites. तो कर सको तो सारी कर लो, बट at least a lot of attention to be paid on last 1 or 2 years में कौन कौन सी नई रामसर साइट्स आई हैं, which will be about 15 to 20 out of this 98. तो ये चीजें मुझे रामसर साइट्स में से करनी है. सेकंड, अब यूनेस्को की लिस्ट आती है. यूनेस्को का कौन सा, मैन एंड बायोस्फीयर का रिजर्व लिस्ट, एंड देन देयर इज दी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जहां पे मराठा फोर्ट्स हैव बीन रिसेंटली इंक्लूडेड, देन इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स जहां पे दीपावली हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड. तो दीज सॉर्ट्स ऑफ लिस्ट्स which are highlighting some particular things, a lot of focus I will pay here, right. मैप्स की हमने बात करी ली है. मैप्स में सबसे पहले अपना रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज डेफिनेटली यू डू. सीज, मेजर सीज, क्योंकि आप देखोगे प्रीलिम्स में बहुत बार मेडिटेरेनियन सी के आसपास कौन सी कंट्रीज है, ब्लैक सी के आसपास कौन सी कंट्रीज है, कैस्पियन सी के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं, बार बार ये क्वेश्चन आते हैं. अब जब आते हैं तो फिर करने चाहिए. तो देन सीज, उनके आसपास की कंट्रीज, उनको कैसे रट्टा मारना है, उनके निमोनिक्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई विल कवर इन द वीडियो. रिवर्स का वीडियो वी हैव ऑलरेडी मेड, वी विल आल्सो मेक अ वीडियो ऑन मेजर माउंटेन चेन्स इन इंडिया, एंड भाई मतलब उनको रट्टा मारने का क्या तरीका है, ये सारी चीजें अपन करेंगे. नाउ लास्ट एंड स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस इज प्लेसेस इन न्यूज. प्लेसेस लाइक ग्रीनलैंड, प्लेसेस लाइक ईरान, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की इतनी बात हो रही है, तो उधर पास में एक और स्ट्रेट है बबल मंदब, which are the two water bodies that it is connecting. Simple questions हैं, but these are things that are often repeated, very straightforward. Now, और क्या places in conflict हैं across the globe? रशिया यूक्रेन अभी भी चल रहा है, इसराइल के आसपास बहुत कुछ हो रहा है कि भाई लेबनान में भी अब बॉम्बिंग कर रहे हैं, they're thinking about a ground offensive. अफ्रीका में there are a lot of conflicts that are going on. यहाँ पे थाईलैंड एंड कंबोडिया में मतलब इश्यूज चल रहे हैं. तो a lot of issues across the globe
माई जॉब इज कि भाई अच्छा उनका एक बार मैं मैप खोल के देख लूं। तो ये सारी जो चीजें हैं we will be covering. I will be making the videos and that you can depend on. Next is species and news. Species and news क्या है? अब करंट अफेयर्स की कोई भी आप मैगजीन उठा लो, आपने अभी तक अगर करंट अफेयर्स नहीं किया है तो देन नेचुरली यू कैन चेक आउट ये जो हमारी कोर मैगजीन है, कोर मैगजीन करंट अफेयर्स मंथली। ये मैगजीन्स वी हैव ऑलरेडी पिछले जून ऑनवर्ड्स हमने सारे एडिशंस इसके निकाल दिए हैं, राइट? जून 2025 ऑनवर्ड्स टिल जनवरी फरवरी का भी एडिशन आने वाला है एंड मार्च एंड ऑल सबका ये चलता रहेगा। तो इस मैगजीन में हमने सिंपली यही किया है कि वी हैव ट्राइड टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल, एज एग्जाम फोकस्ड एज पॉसिबल। कोई भी बहुत ज्यादा इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं दिया है। वी हैव केप्ट इट बेयर मिनिमम, फोकस्ड, एग्जाम ओरिएंटेड, सो दैट आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हाईलाइट करो, इसमें गंदगी फैलाओ एंड कोशिश करो कि भाई जितना ज्यादा आप रिव्यू कर पाओ करंट अफेयर्स को उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो करंट अफेयर्स इज वेरी फैक्ट हैवी एंड फैक्ट्स बार बार अगर मैं रिपीट नहीं करता हूं तो देन आई फॉरगेट देम। नाउ फाइनली इंपॉर्टेंट समिट्स का या इंपॉर्टेंस का क्या लॉजिक है? सिंपली इफ दी समिट्स वर समवेयर रिलेटेड टू इंडिया, लाइक फॉर एग्जांपल G20 में इंडिया का प्रेसिडेंसी था, ब्रिक्स का समिट काफी इंपॉर्टेंट रहा, अभी AI समिट इंडिया में हुआ था अभी। तो all of these summits में if there were some major events, some major technologies that were announced कि भाई इंडिया has announced a lot of कि भाई हम यहाँ पे अपना लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं या जो AI के लिए चीजें करेंगे इंडिया में, क्या क्या हो रही हैं, इन पे ध्यान देना है। अगर गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर स्कीम चिल्ला चिल्ला के बार बार बता रही है उस पे मुझे ध्यान देना है। आई डोंट मतलब गवर्नमेंट की 600 स्कीम है, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ सारी, इतना मेरे पास समय भी नहीं है, ना इतना मेरे पास मेमोरी है। तो माई फोकस इज कि भाई अब मैं कहाँ जाऊंगा? आई विल गो सिंपली ऑन द बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, राइट? इकोनॉमिक सर्वे आपको इधर जाओगे, यू गो टू इकोनॉमिक सर्वे हाइलाइट्स, 45 पेज की ये हाइलाइट्स हैं, इनको जरूर एक बार देख लेना क्योंकि भाई यहाँ पे ग्राफ ही ज्यादा दिए हुए हैं। अब इसमें जो भी कोई स्कीम आती है या जो भी कोई बार बार चीज मेंशन होती है, दिस विल नॉट टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम। 45 पेजेस ये पढ़ने में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, तो ये जरूर करना। इसमें कोई स्कीम आती है तो आई वॉन्ट टू पे अटेंशन टू दैट। सेकेंड, की फीचर्स ऑफ द बजट, बोथ ऑफ दीज आर नाउ प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ। तो यहां पे जैसे एक बहुत ही हमारा ऑरेंज इकोनॉमी करके चीज आई है, राइट? तो ऑरेंज इकोनॉमी पे मुझे ध्यान देना है। क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी से रिलेटेड जो जो चीजें हो रही हैं, तो देन न्यू टर्म योर फोकस शुड बी ऑन दीज थिंग्स। इफ द गवर्नमेंट इटसेल्फ इज फोकसिंग ऑन समथिंग सो मच कि भाई बार बार उस चीज के बारे में बात हो रही है, तो देन दैट इज योर जॉब कि उन चीजों पे मैं भी फोकस करूं। तो लास्ट के 2 महीने में ये सब चीजों पे आपको ध्यान देना है। इफ यू कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो टेस्ट एंड रिव्यू से रिलेटेड विल बी मेकिंग अनदर वीडियो। एंड फोकस इज द गेम। अगर अगले 2 महीने में फोकस कर सकते हो, you will clear prelims. But focusing in these next 2 months when the world around you is trying its level best to distract you is going to be very very hard. But that's the thing कि जो इंसान हार्ड चीज कर पाता है उसी को सक्सेस मिलती है। ऑल द बेस्ट।